Hello everyone. Today we are going to discuss about the land use. Okay. So here we are going to explain the or discuss the revenue about the 7/12 extract. जिसे हिंदी में 7/12 कहा जाता है. We are going to get information about that one. After we are going to discuss about the property card. Okay. So let us start. In the last lecture, we have discussed about the types of land use, that is the rural land use and the urban land use. In that case, we have discussed the all kind of the urban land use. Okay. Then afterward, we have discussed about the transitional areas and suburbs, planned cities. Okay. In the previous lecture, we have taken the activity, or you can say the question answers. Okay. On page number 37, that is figure 6.1. Yesterday we have discussed this question answers. Okay. Now, today we are going to discuss about the extract. So let us know what is the 7/12 extract. Okay. So under land utilization, we have seen how land is put to different uses. हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि लैंड के यूजेस कौन से कमर्शियल लेवल पे हैं, जो है प्लांट सिटीज पर्पस के लिए है, या फिर हम बोलेंगे कि कैसे सबम एरियाज डेवलप हुआ, कैसे लैंड हर एक चाहे वो रूरल लैंड यूज हो, चाहे वो अर्बन लैंड यूज है, उसके हमने टाइप्स देखे, कैसे लैंड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, कैसे कमर्शियल यूज के लिए होती है, पर्पस के लिए यूज होती है, कैसे पब्लिक यूटिलिटी एरिया के लिए ये जो लैंड यूज होती है. दैट वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग the last lecture. Okay, so what I have to say, we are having the different uses of the land. Only the matter is that we are having sorry, the different uses of land. Okay, so the ownership of land could be private or public. Suppose आप आपके घर में रहते हो तो हम बोलते हैं कि हम we are the I am the owner of this house, or I am the owner of this shop, I am the owner of this school. That means what? Owners यानी वो जो लैंड है वो उसकी है. अब उसके लिए उसको कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे. देखो अब ये काम किसका रहता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का. देखो लैंड रजिस्ट्रेशन in this context is done under the revenue department of the government. गवर्नमेंट जो है उसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू. ठीक है, तो हमको अगर लैंड खरीदनी है, देनी है, तो ये जो वर्क है उससे रिलेटेड सेलिंग का, ठीक है, तो वो रहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ. सो लैंड रजिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. All the information about the registered land can be obtained from the revenue department in the 7/12 extract, जिसे हिंदी में 7/12 कहते हैं, मराठी में 7/12 कहते हैं. ठीक है, तो you must have heard 7/12. Okay, the word 7/12. So this extract is a record kept by the public revenue department. Serial number 7 and 12 are distinctive section of the law pertaining the ownership of the land. According to this serial number 7 and serial number 12. Okay, according to this law, actually it is related to the land. ये जो लॉ होता है, it is related to the law, or sorry, it is related to the land. Okay, so इसके हिसाब से जो ओनरशिप है, ओके, वो रिकॉर्ड किसका रहता है, किसके अकॉर्डिंग रहता है? सीरियल नंबर 7 एंड सीरियल नंबर 12. इसलिए उसको 7/12 भी कहा जाता है, 7/12 extract. Okay, the 7/12 extract is a kind of mirror about the land. आपके पास कितनी जमीन है, एरिया कितना है, कहाँ पे आपकी जमीन है, कहाँ से कहाँ तक के है, ये सारी चीजें, यानी आपकी लैंड का मिरर. आप मिरर में देखते हो तो आपकी इमेज जो है वो दिखाई देती है. सेम वैसे ही 7/12 extract is a kind of mirror about the land. Okay, and this is because just by reading the extract sitting in one place, one can
गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीस ऑफ लैंड विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर। आपको वहां उस प्लेस पे जरूरी नहीं है जाने की, ठीक है। सिर्फ आप ऑफिस में जाओ और आप अपना ये देखो 7/12 एक्सट्रैक्ट देखो, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ही कलेक्ट हो जाएंगी। नो नीड टू गो एंड सी द लैंड। ओके, नाउ the register of revenue department records the detail of ownership rights of the family, status of debts and loans। आपके फैमिली ने, आपकी फैमिली जो है का जो लैंड है वो कितनी है उसके बारे में रिकॉर्ड रहता है, क्या एरिया है उसका, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ डेप्ट, कोई कर्जा तो नहीं लिया है, जैसे लैंड लोग गिरवी रखते हैं कि नहीं, उनको अगर लोन चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रखते हैं या फिर अपने हाउस गिरवी रखते हैं, तो वो डेप्ट के अंदर तो नहीं है, किसी लोन के अंडर तो नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द एरिया अंडर द क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स। एक जो फॉर एग्जांपल किसी को अगर लैंड बेचने, जैसे हम लेते हैं ना, फ्लैट लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो जमीन अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं। तो अभी समझो अगर मैंने किसी को जमीन बेची, ठीक है, आई हैव सेल्ड द लैंड टू अदर वन, ओके, तो मैं क्या करूंगी, उसको लिखित स्वरूप में यानी राइटिंग वे में मैं उसको अपनी जमीन उसके नाम करूंगी, एंड इन रिटर्न टू दैट आई विल टेक द मनी फ्रॉम हिम और हर, जिसको भी मैं बेच रही हूँ, ठीक है, जो लेने वाला है उससे मैं क्या करूंगी, मैं जो है पे जो कागज पे साइन वगैरह करके, यानी वो जो कागज यानी जो भी वो मैटर रहेगा, ठीक है, रजिस्ट्री का, उसके ऊपर साइन करके वो जमीन जो है सेकंड पर्सन की हो जाएंगी, और इन रिटर्न टू दैट वो जो सेकंड पर्सन है आपको मनी देगा जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड जो है वो 7/12 एक्सट्रैक्ट में रहता है। ओके, द विलेज फॉर्म्स आर अवेलेबल, सॉरी, family stated debts and loans, transfer of ownership and the area under different crops। अभी सपोज फॉर एग्जांपल विलेज है, तो विलेज में जो है वो फार्म, एक फार्मर की लैंड कितनी है, उसमें से भी वो कितने जमीन पर क्रॉप्स ले रहा है, कितने जमीन पर नहीं ले रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ही स्टोर रहती है। ओके, एंड विलेज फॉर्म 7 नंबर 7, विलेज फॉर्म नंबर 12 आर कंबाइंड टू प्रिपेयर as 7/12 extract। विलेज फॉर्म नंबर 7 एंड विलेज फॉर्म नंबर 12, ये दोनों का एक्सट्रैक्ट रहता है, दैट इज द 7/12 extract। okay, hence it is termed as 7/12 extract। so these village form are available with the talati of every village for land and revenue collection purpose। अगर आपको ये इसकी जानकारी चाहिए तो आपको तलाठी ऑफिस में जाना है, और तलाठी जो है ये इसका पूरा जो है क्या बोलेंगे हम, कि जो भी रिटर्न इंफॉर्मेशन है उन्हीं के पास जो है ये स्टोर रहती है। ओके, हाउ इज द 7/12 एक्सट्रैक्ट रीडिंग, इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। तो ऑक्यूपेंट क्लास 1 मींस द लैंड ओवर विच ओनरशिप राइट्स आर अवेलेबल थ्रू जनरेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, सैंपल इज गिवन हियर। ओके, आई विल शो यू डेफिनेटली। ये देखो इस तरीके से रहता है, दिस इज द सैंपल ऑफ 7/12 एक्सट्रैक्ट। देखो यहाँ पे महाभूमि करके ई महाभूमि लिखा हुआ है, ई यानी अभी कंप्यूटर पे है ना ये, दैट्स व्हाई ई इज रिटन हियर, ई महाभूमि। ओके, सो ऑक्यूपेंट क्लास 1 मींस द लैंड ओवर which ownership rights are available through generations। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अशोक दत्तात्रेय सुरडे, कैलाश दत्तात्रेय सुरडे। ओके, ये देखो ऐसे जो है ना, ये लैंड के नाम जो ओनर के नाम है, जैसे पापा का नाम है, सपोज कि ये जो पापा का नाम होगा अशोक दत्तात्रेय सुरडे, तो कैलाश दत्तात्रेय सुरडे ये भाई है, क्योंकि इसके फादर एक है, जैसे अशोक और कैलाश, दत्तात्रेय सुरडे, यानी ये दोनों क्या है, भाई है। ये जो जमीन है, ठीक है, ये दो भाइयों के ऊपर, भाइयों के नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसके बाद देखो प्रशांत परशुराम आहेर, सचिन परशुराम आहेर, फादर का नाम कॉमन है, इसलिए देखो ये भी दोनों भाई है, ठीक है। तो ऐसे रिटर्न नाम जो है जनरेशन टू जनरेशन इनके पास लिखी होती है कि ये जमीन पहले किसकी थी और फिर किसके नाम पे ट्रांसफर हो गई। ये सारा रिकॉर्ड आपको तलाटी की ऑफिसर के पास मिल सकता है। ओके,
द ऑनर सॉरी ऑक्युपेंट क्लास 2 मीन्स लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस पीपल। अभी ऑक्युपेंट क्लास 2 यानी क्या होगा? ऑक्युपेंट क्लास 2 मीन्स लैंड गिवन बाय गवर्नमेंट टू मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस पीपल। जिनके पास लैंड नहीं रहती है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो उनके लिए एक पर्टिकुलर जो है लैंड रिजर्व करती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, भी फ्लड आने के बाद उनकी जो घर जो है, हाउसेस जो है वो बह जाते हैं। वो लोग जो गरीब लोग रहते हैं उनके पास ना तो फिर अब इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है कि उनके पास घर भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो इस जो समय है गवर्नमेंट उनको लैंड देती है। ठीक है, तो ऐसे लैंड के अंदर ये जो है ऑक्युपेंट क्लास 2 है, उस ऑक्युपेंट क्लास 2 ये उसके अंडर आएंगे लैंड। सच लैंड कैन बी सोल्ड, लीज, प्लीज, गिवन एज अ चैरिटी और ट्रांसफर ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो सैंक्शन करता है उसके ऊपर देखो, सच लैंड कैन बी सोल्ड, बेची जा सकती है, लीज यानी किराए पे देखी जा दी सकती है, गिवन एज अ चैरिटी और ट्रांसफर ओनली विद द सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर एक सैंक्शन करता है किराए पर चढ़ाने के लिए, बेचने के लिए या फिर एज अ चैरिटी दान करने के लिए, किसी के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए, तो ये जो वर्क होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होता है। ठीक है, ट्रांसफर का काम इनके अंडर होता है। Below that, under assessment, the amount of tax levied on the land is given in rupees per person. फिर उसके लिए उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर जो है वो जो है जमा होता है। In other rights, the names of the other joint holders are included. This also shows the status of loans taken for the agriculture, whether they have been repaid or not. फिर कोई लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की खेती करने के लिए लोन लेते हैं, या फिर किसी को वो जो है हाउसेस जो है वो ये इस पे चढ़ाते हैं, लोन के ऊपर चढ़ाते हैं और उससे लोन लेते हैं ना, हाउसेस गिरवी रखकर लोन लेते हैं। तो अदर राइट्स में जो है ये नेम ऑफ द अदर जॉइंट होल्डर्स आर इंक्लूडेड, अदर जॉइंट होल्डर का नाम आता है। अदरवाइज जो मेन है, एंसेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये परशुराम, अशोक परशुराम सुरडे है। ठीक है, या फिर सॉरी क्या नाम था, परशुराम, यस, प्रशांत परशुराम आहेर, सचिन परशुराम आहेर। अभी ये जो है दो भाई है, इसके पापा की भी वो जमीन होंगी तो उसके नाम पे होंगी, पहले उसके पापा के नाम पे जमीन होंगी। तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो है आपको इसकी जो है इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी कार्ड। सो ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड एंड रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड। जो लैंड एग्रीकल्चर, ओके, जो लैंड